أما بعد أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وباليوم الآخر. وقال تعالى في مقام آخر: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی بدل، نعم البدل دنیا میں نہیں ہوتا، وہ بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ فتنوں کے زمانے میں، مادیت پرستی کے دور میں ایمان کا مل جانا اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ اور میرے بھائیو، ایمان وہ نعمت ہے جسے مال پیسے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حسب نسب، ذات، برادری کی بنیاد پہ کسی کو ایمان نہیں مل سکتا۔ ذہانت اور قابلیت کی بدولت بھی کوئی بندہ ایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے: پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں رہائش اختیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا بارہا دیدار کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے براہ راست دین کی دعوت سننے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ آج ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں ایمان مفت میں ملا ہے، ہمیں ایمان کی خاطر سفر نہیں کرنا پڑا، مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی مال پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا: بلال آپ بتائیے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے،
حضرت بلال ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیے ایمان کی قیمت کیا ہے؟ حضرت سمیہ ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح بتا سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو جنہوں نے ایمان کی خاطر قربانیاں دی، جنہوں نے ایمان کی خاطر مشقتیں اٹھائی تھی، تلخی ترشی برداشت کی تھی، ان سے بندہ پوچھے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بظاہر مختصر الفاظ پر مشتمل کلمہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اپنی ذات میں اتنی وسعت رکھتا ہے، اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اگر اس کلمے کے اسرار اور رموز بیان کرنے شروع کر دیے جائیں تو یہ ایک نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی۔ تاہم مختصر طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مختصر کلمے میں بندہ پوری دنیا کے باطل خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ایک اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لا کی تلوار چلانی پڑتی ہے، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ جب میں نے لا کی تلوار چلائی، لا نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے لا کی تلوار چلائی تو اللہ کے سوا سب کی نفی کر دی، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو، تو نے میری نگاہوں میں میرے محبوب پروردگار کے سوا سب کو ہیچ کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا عظیم کلمہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں تو آپ سے کسی خاص ذکر کا متمنی تھا، مجھے کوئی خاص ذکر بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین، آسمان اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ ایک کلمہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس کلمے میں توحید ہے اور اللہ کو توحید پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ اور ایمان کی عظمت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے،
बनी इसराइल की एक बदकार बदकिरदार खातून कहीं जा रही थी। रास्ते के करीब कुआं था। कुएं के किनारे पे एक कुत्ता पड़ा हुआ था जिसको शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। उस खातून ने कुएं से पानी निकाला, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने बदकार बदकिरदार औरत की मगफिरत का फैसला फरमा दिया। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, और कुत्ता इस कदर हकीर मखलूक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन को मुंह लगाए, उस बर्तन को 7 मर्तबा धो लो, 8वीं मर्तबा अच्छी तरह रेत के साथ धुलाई कर दो। ये इतना हकीर मखलूक है, लेकिन बदकार औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने मगफिरत का फैसला फरमाया। दूसरी जानिब कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह की तामीर कर ली, मस्जिद हराम की तामीर कर ली। फिर हाजी हजरात आते थे, हाजी हजरात को जमजम का पानी पिलाया करते थे, और वो इसी पर मुतमइन थे कि हम तो हाजियों को पानी भी पिलाते हैं, मस्जिद की तामीर भी करते हैं, तो हमारी बख्शिश के लिए यही कुछ काफी है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनको समझाया, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किया हाजियों को जमजम पिलाना और मस्जिद हराम की तामीर करना ये ईमान के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ईमान का दर्जा बुलंद है, ईमान का दर्जा इससे भी बुलंद है। अगर बनी इसराइल की बदकार औरत प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है, उसकी बख्शिश का फैसला होता है क्योंकि उसके पास ईमान है। और अगर कुरैश जैसे आला खानदान के लोग हाजियों को जमजम पिलाते हैं, बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कोई वुक़अत नहीं है क्योंकि ईमान मौजूद नहीं है। ईमान जरूरी है, ईमान की बिना पे फिर बाद में आमाल कबूल होते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया का दस्तूर है कि जो चीज ज्यादा कीमती होती है वो हिफाजत की ज्यादा मुहताज होती है। घर के अफराद चंद दिनों के लिए दूसरे शहर में जाते हैं तो वो मेज और कुर्सियां उसी तरह बैठक में छोड़ देते हैं और चरपाइयां बरामदे में वैसी पड़ी होती हैं। खाने पीने के बर्तन बावर्ची खाने में रख के बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं, परवाह नहीं करते। रजाइयां और बिस्तर कमरे में वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन खवातीन के पास सोने का जेवर होता है, उसको डबिया में बंद करके लोहे की अलमारी की दराज में रखती हैं, फिर दराज को लॉक लगाती हैं, फिर बाहर से अलमारी को मोटा ताला लगाती हैं, फिर बाद में कमरे को भी एक मोटा ताला और लगाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सोना कीमती है, इसकी ज्यादा हिफाजत की जाती है। जो चीज ज्यादा कीमती होती है उसकी ज्यादा हिफाजत की जाती है। और ये भी दुनिया का दस्तूर है कि डाकू जब भी डाका डालते हैं हमेशा के लिए कीमती चीज पे डालते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डाकुओं ने घर में नकब लगाई और मेज और कुर्सी लेके चले गए, रजाइयां और कंबल लेके चले गए। डाकू भी जब घर में नकब लगाते हैं तो कीमती असासे तलाश करते हैं, सोना चांदी तलाश करते हैं, नकदी तलाश करते हैं। अगर यही उसूल है तो शैतान हमारा दुश्मन डाकू, और ये हमारे पास जो सबसे कीमती सरमाया है ईमान, वो इस ईमान पे डाका डालने की कोशिश करता है। अब शैतान से अपना ईमान बचा के ले जाना ये हमारे लिए एक चैलेंज है, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। और मेरे भाइयों, ये बात याद रखें कि हम इस वक्त इस्लामी तारीख के सबसे ज्यादा पुरखतर जमाने में जी रहे हैं। दौरे नबुव्वत से लेकर आज तक
इस 1400-1450 सालों में ईमान के लिए कोई जमाना इस कदर खतरनाक नहीं था जितना आजकल का जमाना खतरनाक है। और ये वो जमाना है जिसके बारे में आज से 14 सदियां पहले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाल सालिहा, ऐ मेरे सहाबा नेक अमाल में जल्दी किया करो, सतकून फितनुन, अनकरीब ऐसे फितने आने वाले हैं, का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे तारीक रात के तह दर तह अंधेरे होते हैं। युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा। व युमसी रजुलु मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को बंदा मोमिन होगा, सुबह को वो काफिर हो चुका। ऐसे लोगों का ईमान खतरे में होगा। सुबह घर से निकलेंगे ईमान की हालत में, शाम को घर लौटेंगे तो ईमान से महरूम हो चुके होंगे। दिन के वक्त ईमान के डाकू के हत्थे चढ़ चुके होंगे, वो ईमान पे डाका डाल के इसको ईमान से खाली वापस घर भेज देगा। शाम को बिस्तर पे जाएंगी ईमान की हालत में, सुबह उसी बिस्तर से उठेंगे तो ईमान से महरूम हो चुके। शैतान और शैतान के जानशीन, शैतान के एजेंट ऐसे मुतहर्रिक होंगे, लोगों को ईमान से महरूम करने की कोशिश करेंगे। और मेरे भाइयों, शैतान पूरी जिंदगी बंदे का पीछा करता है कि मुझे कोई मौका मिल जाए इसको ईमान से महरूम कर दूं। लेकिन अगर पूरी जिंदगी में शैतान कामयाब न हो सके तो जब बंदे के आखिरी लम्हात होते हैं उस वक्त शैतान की कोशिशें जोरों पर होती हैं। शैतान समझता है कि ये वो नाजुक लम्हात हैं, अगर इन लम्हात में मेरा दाव चल गया फिर इस बंदे की पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उस वक्त शैतान पूरा जोर लगाता है। मेरे भाइयों, आपने कभी गौर किया है, हम तो शैतान के मुकाबले में इतने कमजोर साबित होते हैं। इस वक्त जीते जागते होशो हवास की हालत में शैतान का सामना हम नहीं कर पाते। शैतान जब हमारे साथ गेम खेलता है हमें पता बाद में चलता है, शैतान अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है। हम बाद में कहते हैं ये किया हुआ, शैतान ने मुझे धोखा दिया, शैतान ने मुझे वरगलाया, शैतान ने मुझसे गुनाह करवाया। इस वक्त होशो हवास की हालत में शैतान का मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल है। जब मौत के वक्त सकरात तारी होंगे, शिद्दत का आलम होगा, हवास ठीक तरह काम नहीं कर रहे होंगे, तो उस वक्त शैतान से अपना ईमान बचा के ले जाना बहुत दुश्वार होगा। हमें चाहिए कि हम उन आखिरी लम्हात के लिए फिक्रमंद हो जाएं। ऐसा तो ना हो कि पूरी जिंदगी दीन के साथ चिमटे रहे, आखिरी लम्हात में शैतान का दाव चल गया और ईमान से महरूम दुनिया से चले गए। आखिरी लम्हात के लिए फिक्रमंद हो जाएं। और मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि हम बहुत गुनाहगार, बहुत बुरे हैं, लेकिन उम्मीद की एक किरण मौजूद है। वो ये कि अगर अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो गए तो उम्मीद की जाती है कि क़ियामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बदौलत हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर ईमान बचा के ले जाने में कामयाब न हुए तो हमेशा हमेशा की शकावत और बदबख्ती हमारा मुकद्दर है। अल्लाह ताला हमें बदबख्ती से महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, इस पुरफितन दौर में जब लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो चुका है, हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो जाए। और यही वजह है कि हमारे अकाबिर, जिनके सीनों में पहाड़ों से भी ज्यादा वजनी ईमान होता था, वो भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हुआ करते थे। सही बुखारी शरीफ में
एक मुहद्दिस का तज़किरा कसरत से मिलता है, हजरत रबई इब्न हिराश रहिमहुल्लाह ताला। उनके बारे में अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनको पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पूछने वाले ने पूछा, आप कभी मुस्कुराते नहीं हैं? फरमाया, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अपना ईमान बचा के ले जा सकूंगा या नहीं ले जा सकूंगा। हाँ, जिस दिन मुझे पता चल जाए कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूं, उस दिन दुनिया वाले मुझे मुस्कुराता देखेंगे। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनको पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन वफात के बाद जब गुस्ल देने वाले उनको गुस्ल दे रहे थे, वो गुस्ल के तख्ते पे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूं। बड़े फिक्रमंद होते थे हमारे अकाबिर कि ये आखिरी लम्हात में शैतान से कैसे बचेंगे। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इस पुरफितन दौर में ईमान को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात समझ लें कि इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ वही बंदा बचेगा जिसको अल्लाह बचाएगा। वही बंदा बचेगा जिसको अल्लाह बचाएगा। किसी का इल्म उसको नहीं बचा सकता, किसी की दीनी खिदमत उसको नहीं बचा सकती, किसी की समझदारी और दानाई उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। बचेगा सिर्फ वही जिसको अल्लाह बचाएगा। मालूम होता है कि सारा मामला अल्लाह के फजल पर मौकूफ है। अल्लाह का फजल होगा तो हम बचेंगे, अल्लाह का फजल नहीं होगा तो नहीं बच सकेंगे। अब अल्लाह के हम क्यों मुसलमान हैं? इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का फजल शामिल है। हम क्यों ईमान वाले हैं? इसलिए नहीं कि हम समझदार बहुत हैं, इसलिए नहीं कि हम मुआशरती एतबार से बड़े बुलंद मर्तबे वाले हैं, इसलिए नहीं कि हमारी बिरादरी बड़ी आला दर्जे की है। हम इसलिए मुमिन हैं कि हमारे साथ अल्लाह का फजल है। हमें ईमान मिला है अल्लाह के फजल से, और हमारा ईमान बचेगा अल्लाह के फजल से। बचेगा सिर्फ वही जिसको अल्लाह बचाएगा। तो अगर मामला अल्लाह के फजल पर मौकूफ है तो फिर हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें जिनकी बदौलत अल्लाह के फजल को दवाम मिल जाए, हमारे साथ ये अल्लाह का फजल इसी तरह बरकरार रहे। और वो कौन से अमाल हैं? पूरे दीन पे अमल करना है, सारे गुनाहों से बचना है, तो अल्लाह का फजल हमारे साथ बहाल रहेगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम पूरे दीन पे अमल करें, सारे गुनाहों से बचें। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि कोशिश जारी रखें कि हम कोई एक गुनाह भी न करें और पूरे दीन पे अमल करें। और जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते तो कम से कम एक काम अपने ऊपर लाजिम कर लें। एक काम लाजिम कर लें कि रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी जरूर दिया करें। हालात जैसे कैसी भी हों, गर्मी है, सर्दी है, फुर्सत है, मसरूफियत है, शादी है, गमी है, जो कुछ भी हो जाए, रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी देनी है। वजह यह है कि जो बंदा रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी देता है तो अल्लाह के फजल से ये बात बईद है कि वो क़ियामत के दिन उस बंदे को अपने दुश्मनों की सफ में खड़ा कर दे। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत करें। कम से कम 5 मरतबा अल्लाह के घर में हाजिरी दिया करें। और इसका फायदा क्या होता है? मेरे भाइयों, हम बहुत गुनाहगार हैं। अगर हम बार बार गुनाह करते हैं तो बार बार अल्लाह के दरबार में हाजिरी देकर अपने उस राब्ते को बहाल कर लिया करें। गुनाह हो जाता है,
लेकिन गुनाह हो जाए तो फिर बंदा अल्लाह का दर छोड़े ना, फिर अल्लाह के दर पे हाजिरी देकर एक मर्तबा फिर ताल्लुक को उस्तवार कर ले। गुनाह की वजह से ताल्लुक खत्म हो जाता है, हम नमाज के लिए आते हैं, एक मर्तबा फिर राब्ता उस्तवार हो जाता है। और ये बात याद रखें कि कोई बंदा अल्लाह ताला के साथ इतना ला ताल्लुक न हो, इतनी दूरी इख्तियार न करे कि रोजाना 5 मर्तबा अल्लाह का नुमाइंदा हमें अल्लाह के घर में बुलाए और हम हाजिरी न दें। इतना बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, गुनाह भी हो जाते हैं, गफलत भी आ जाती है, लेकिन इतना अल्लाह से दूर हो जाना कि 5 मर्तबा बंदा हाजिरी न दे सके, यकीनन ये बहुत बड़ी महरूमी की बात होती है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं साथियों के साथ सफर कर रहा था, एक जगह पे काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, जो हमारे पास सामान था, असबाब था, सब कुछ हमसे छीन लिया। फरमाते हम बेयारो मददगार हैरान परेशान थे, सहरा में हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर देख लिया कि उन डाकुओं में से एक डाकू नमाज पढ़ने लग गया। मैं हैरान हो गया, उधर डाके डालते हैं, उधर नमाजें पढ़ते हैं। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, एक तरफ तुम डाके डालकर मखलूक खुदा को परेशान कर रहे हो, दूसरी तरफ नमाजें पढ़ते हो। तो डाकू ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि डाका डालना मेरी मजबूरी है, ये मेरा खानदानी पेशा है, नहीं छोड़ सकता, लेकिन नमाज इसलिए पढ़ता हूं कि अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते अपने लिए बंद नहीं करता, ये एक रास्ता खुला रखता हूं, एक राब्ता, एक दरवाजा खुला रखता हूं। किसी वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी तो इस नमाज के जरिए अल्लाह तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ये एक दरवाजा खुला रखता हूं। फिर फरमाते हैं कि 6 महीने बाद मैं हरम शरीफ गया हज करने के लिए। मैंने देखा एक बंदा था जिसने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ा हुआ था, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था। मुझे रशक आया, ये कौन अल्लाह का वली है, इस कदर जारो कतार रो रहा है। फरमाते मैंने सोचा कि मैं करीब जाके देख लूं। मैं करीब गया, मैंने देखा वही डाकू था जिसको मैंने 6 महीने पहले देखा था, डाका डालते हुए और फिर नमाज पढ़ते हुए। तो मुझे याद आया कि हाँ, इसने तो कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे दरवाजे अपने ऊपर बंद नहीं करता, एक दरवाजा खुला रखता हूं, शायद किसी वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए और मेरा काम बन जाए, तो शायद उसी दरवाजे से अल्लाह ने इसको अपना कुर्ब अता कर दिया। तो कम से कम ये एक दरवाजा तो हम अपने ऊपर खुला रखें। गुनाह नहीं छोड़ सकते, निगाहों की हिफाजत नहीं है, जुबान पे कंट्रोल नहीं है, कानून का सुनना शरीयत के मुताबिक नहीं है, खाने पीने में हलाल हराम का कोई फर्क नहीं है, मखलूक के खुदा को परेशान करना हमारा वतीरा बन चुका है। कम से कम इतना कर लिया करें कि अपने अल्लाह के साथ ये ताल्लुक बरकरार रखें, मुकम्मल ताल्लुक खत्म न करें। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा हाजिरी लगाया करो, हाजिरी लगाया करो, सबक याद हो या न हो, कम से कम खारजा तो नहीं होगा, कम से कम खारजा तो नहीं होगा। आप हजरात स्कूलों में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ चुके होंगे, कई सारे तलबा हैं जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। स्कूल और मदरसे का ये उसूल है कि बच्चा गैर हाजिर होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता गैर हाजिर हो गया तो गैर हाजिरी के बाद उसका नाम खारिज कर दिया जाता है कि अब ये हमारा तालिब इल्म नहीं रहा, ये मुसलसल गैर हाजिरी करता है। और जो तालिब इल्म हाजिरी का एहतमाम करता है, सबक याद हो या न हो, कम से कम उसको मदरसे का तालिब इल्म समझा जाता है। ऐसी ही जब अल्लाह के दरबार से आवाज आई कि मेरे दरबार में हाजिरी दे दो, बंदा सुबह के वक्त गैर हाजिर रहा, जोहर के वक्त गैर हाजिर रहा, असर मगरिब ईशा में गैर हाजिर रहा, आखिरकार उस बंदे का नाम
अल्लाह के बंदों की फहरस्त से काट दिया जाता है कि अब ये अल्लाह का बंदा ही नहीं रहा, ये मुसलसल गैरहाजिरी करता है। और इसी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जो बंदा कस्तन नमाज छोड़ देता है, नमाज छोड़ने को आदत बना देता है, आखिरकार वो कुफर में चला जाता है। उसका नाम अल्लाह के बंदों की फहरस्त से काट दिया जाता है कि ये मुसलसल गैरहाजिरियां करता है। अल्लाह के फजल पर मामला मौकूफ है, लिहाजा अल्लाह की इस फजल को दवाम देने के लिए हमें चाहिए कि हम कम से कम रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी दिया करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बनाएं। ईमान की हिफाजत के लिए दूसरा तरीका ये कि रसूलुल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं। रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए हमें 2 काम करने होंगे। एक तो ये कि सुन्नत की इत्तिबा करें, सुन्नत की इत्तिबा की बदौलत बंदे का ईमान महफूज हो जाता है, तफसील का वक्त नहीं है। दूसरा काम, दरूद शरीफ की कसरत करें। दरूद शरीफ की कसरत की बदौलत रसूलुल्लाह के साथ हमारा राब्ता हर वक्त बरकरार रहता है। मेरे भाइयों, हमारा ये नुक्ता नजर है कि जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, फरिश्ते वो दरूद शरीफ ले लेते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह के नबी, ये फलां बंदे की जानिब से आपके लिए हदिया है। वो दरूद शरीफ हदिये के तौर पे रसूलुल्लाह के पास पेश किया जाता है। अब अगली बात समझ लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र भर का ये तरीका था कि जब कोई बंदा आपको हदिया दिया करता था, आप बदले में जरूर हदिया दिया करते थे। और आज भी मेरे महबूब का यही तरीका है कि जब भी कोई बंदा जाके हदिया देता है, आप भी बदले में हदिया दिया करते हैं। अगर हम यहां से दरूद शरीफ के हदाया भेजते रहेंगे तो वहां से भी हदाया आते रहेंगे, लेकिन वो हदाया माल पैसे की सूरत में नहीं होते, वो कपड़े और सूट की सूरत में नहीं होते, वो फ्रूट और मिठाई की सूरत में नहीं होते, वो कल्बी अनवारात और सीने की तजल्लियात की सूरत में होते हैं। यहां से बंदा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है, वहां से अनवारात और तजल्लियात का वरूद शुरू हो जाता है। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मदीना मुनव्वरा में था, अल्लाह ताला ने मुझ पर अजीब कैफियत मुनकशिफ कर दी। मुझे यूं नजर आ रहा था जैसे गुंबद खजरा से नूर की शुआएं फूट रही हैं और दुनिया के कोने कोने में फैल रही हैं। मैंने गौर किया, मैंने मुराकबा किया कि ये शुआएं कहां जाती हैं। फिर मेरे ऊपर ये बात खोल दी गई कि रूई जमीन पर जहां कहीं लोग दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, उनके सीनों में ये अनवारात पहुंच रहे हैं। तो रसूलुल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत करने के लिए दरूद शरीफ से बढ़ के हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। हम यहां से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहां से अनवारात पहुंचना शुरू हो जाते हैं। रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, ईमान महफूज होगा। ईमान मिला है अल्लाह के फजल से, ईमान बचेगा अल्लाह के फजल से। लिहाजा अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करें ताकि अल्लाह के फजल को दवाम मिले, ईमान महफूज होगा। ईमान हमें मिला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक और तुफैल से। रसूलुल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर ले, हमारा ईमान महफूज हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये कि हमें ईमान जिन ज़राए से मिला है, उन ज़राए के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, हमारा ईमान महफूज हो जाएगा। ईमान हमें मिला है मस्जिद से, ईमान हमें मिला है मदरसे से, ईमान हमें मिला है मरकज से, ईमान हमें मिला है खानका से। इन मराकिज के साथ ताल्लुक मजबूत करें। ईमान हमें मिला है उलमा से, ईमान हमें मिला है मशाइख से, ईमान हमें मिला है दीन का काम करने वालों से। तो जिन ज़राए से हम तक ईमान पहुंचा है, उन ज़राए के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं, ईमान महफूज हो जाएगा।
میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ مدرسے اور مسجد سے متنفر ہو کر ہم کبھی بھی اپنا ایمان بچا نہیں سکتے۔ علماء اور مشائخ سے لا تعلق ہو کر ہم ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بندہ ان فتنوں کے بہاؤ میں بہنے لگ جاتا ہے، پھر وہ قدم روکنا بھی چاہے تو اس کے قدم رکتے نہیں ہیں۔ جیسے بندہ پھسلتا ہے تو پھسلنے والا بندہ چاہتا بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، وہ نہیں روک سکتا۔ ایسے فتنے ہیں، فکری فتنے، اخلاقی فتنے، نظریاتی فتنے، ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں جن کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی عالم کے ساتھ ہوتا ہے، کسی مدرسے مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، کسی دینی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو بچ جاتا ہے۔ اور جو علماء اور مراکز سے بیزار ہوتا ہے تو پھر وہ بیچارہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اصول یاد رکھیں، پتنگ جب تک ڈوری کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے وہ اوپر بھی ہوتی ہے، کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ ڈوری کٹ جاتی ہے، پتنگ نیچے کی طرف آتی ہے، پھر کٹی ہوئی پتنگ کو جس نے پکڑ لیا اسی کی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ڈوری کو جوڑے رکھیں دین والوں کے ساتھ۔ اگر ڈوری کٹ گئی تو ہماری حیثیت کٹی ہوئی پتنگ کی بن جائے گی، پھر جس نے پکڑ لیا اسی کیا ہو جائیں گے۔ اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، رسول اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، ایمان بچ جائے گا۔ اور جن ذرائع سے ہم تک ایمان پہنچا ہے ان ذرائع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ علماء، یہ نیک لوگ، یقین کرے ان کے ساتھ بیٹھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں اگلی بات کروں کہ ان کی طرف ایک بار محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ بندے کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کو محبت کی نظر سے دیکھا، کسی طالب علم کو محبت کی نظر سے دیکھا، کسی عالم کو محبت کی نظر سے دیکھا، ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے صندوق میں بند کر دیا، دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب فرعون نے صندوق پکڑ لیا، صندوق کھولا، کھولتی ہی دیکھا خوبصورت بچہ انتہائی سکون اور اطمینان کی حالت میں لیٹا ہوا ہے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا، دیکھتے ہی فوراً بول پڑی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس بچے کو میں نے دیکھا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ فرعون نے کہا، یکون لک واما انا فلا حاجت لی فیہ، ہے یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، فرعون ایمان سے محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اقر فرعون بأنہ قرۃ عین لہ کما اقرت بہ امرأتہ لہداہ اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ۔ اگر فرعون بھی ایسا ہی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ فرعون کی بیوی نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسی ہی ہدایت سے نوازتا جیسا کہ فرعون کی بیوی کو ہدایت سے نوازا۔ بس محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، جن ذرائع سے ہم تک ایمان پہنچا ہے ان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، آج ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مسجد اور مدرسے سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو مسجد اور مدرسے کے بارے میں بدگمان کیا جا رہا ہے۔ دین کا کام کرنے والے علماء اور مشائخ سے دور کیا جا رہا ہے۔ منظم منصوبے کے تحت
और जो लोग उस प्रोपेगंडे से मुतासिर हो गए और वो उलमा दीन का काम करने वालों से कट गए, फिर उनका ईमान खतरे में पड़ जाता है। और जो जुड़े रहे इनके साथ ताल्लुक की बदौलत अल्लाह ताला उनकी ईमान को महफूज कर देता है। लिहाजा आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि दीन का काम करने वाले हैं, किसी भी जमात में हैं, कहीं पे भी हैं, उनके साथ ताल्लुक मजबूत रखें। मस्जिद के साथ, मरकज के साथ, खानका के साथ, मदरसे के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें। कम से कम हम बड़े वली नबी बन सके, हवा में उड़ने वाले नबी बन सके, कम से कम हमारा ईमान बच जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल।